Hello everyone, in this video we are going to discuss what are the levels of reading. Comprehension in reading means understanding what is being read. Comprehension का एक मतलब भी होता है कि कुछ समझना. So comprehension in reading मतलब कि reading में आप comprehension करते हो, इसका मतलब होता है understanding what is being read. Many students are strong at recognizing words in print but struggle with making meaning from what they read. बहुत बच्चे जो होते हैं वर्ड्स को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, वर्ड्स को वो बहुत अच्छे से देख के उसको रीड कर लेते हैं, लेकिन उनको स्ट्रगल वो करते हैं वाइल मेकिंग मीनिंग फ्रॉम व्हाट दे रीड. वो जो पढ़ते हैं उससे मीनिंग बनाने में उनको कभी कभी दिक्कत आता है. दे मे नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मेन कैरेक्टर एंड समवन हु इज़ ओनली प्रेजेंट फॉर वन इंटरैक्शन. Or they may have trouble choosing important events in a story and putting them in the correct order. These and other skill are important aspect of comprehension. वो कभी कभी बच्चे वो नहीं समझ पाते कि अगर वो स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन है और कौन एक कैरेक्टर है जो बस थोड़ी देर के लिए इंटरेक्शन के लिए आया था. बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो स्किल बहुत चैलेंजिंग स्किल है. कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं अगर आपको देखते हैं फ्लुएंटली और एक्यूरेसी के साथ पढ़ते हुए तो वो एज्यूम करते हैं कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो अच्छी है, बट अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग द रीडिंग मटेरियल तो आप उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रगल करते हो. इट मीन्स आपको मीनिंग मेकिंग में दिक्कत होता है. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ कॉम्प्राइज्ड ऑफ सेवरल लेवल. 4 लेवल है: लिटरल लेवल, इंटरप्रेटिव लेवल एंड क्रिटिकल लेवल, क्रिएटिव लेवल. वी विल डिस्कस ऑल 4 levels one by one. So when students read, they need to be able to understand text on all these levels. Sometimes they are reading for literal information, such as they want some recipe and direction. Other time they may read to know deeper understanding, and they read for knowledge and ask question about what the author may mean. Using interpretive skill, they may also need to read with a critical eye, fact fetching information. Finally, some readings calls for student to be creative in the understanding and make judgment about their thinking in relation to the author's writing. सो हर एक लेवल पे रीडिंग होता है. समटाइम्स ये लिटरल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, समटाइम्स इंप्रेटिव लेवल के लिए, क्रिटिकली कभी कभी आपको देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, और कभी कभी क्रिएटिव लेवल पे आपको देखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ लिटरल लेवल. हियर इज़ अ स्मॉल स्टोरी. Jimmy is at a very beginning stage of understanding what he reads. जिमी एक बच्चा है जो अभी बहुत बिगनिंग स्टेज पे है कि वो जो पढ़ता है वो समझे. वो एक किताब लेता है जिस किताब के कवर पे he finds that there is a dog and cat on the cover. He can understand the book will be about a dog and cat. तो seeing the dog and cat on the cover of his book, he may understand कि ये जो book होगा वो cat and dog के बारे में होगा. वहाँ पे if he reads the dog runs, Jimmy knows that means the dog runs. He is able to read and understand the text on literal level. Understanding what the word mean in very basic way, student at the level understand the word on the page as they are written. तो बेसिकली वो जब पढ़ता है तो उस पर लिखा रहता है द डॉग रन्स. इसका मतलब डॉग जो है वो दौड़ता है. वो पढ़ने के बाद वो बहुत लिटरल लेवल पे समझ पाता है कि डॉग जो है वो दौड़ता है. तो लिटरल लेवल बच्चे वहीं समझ पाते हैं जो लिखी हुई चीज़ें हैं. At the basic level, student can answer basic fact-related questions. Jimmy's teacher may ask him about a fact from the book, such as who the character are, who is what the dog is doing, what is the name of the dog, what is the name of the cat. In non-fiction, Jimmy may be able to understand concepts such as sequence or the order of steps in direction.
This level of comprehension relies on the student's ability to recall fact and figure from what is read and is a low level थिंकिंग स्किल. ये बहुत ही लो लेवल थिंकिंग स्किल है जिसमें बच्चे एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर देंगे. द नेक्स्ट वन इज़ इंटरप्रेटिव लेवल. At the interpretive level, students are able to read beyond the literal words on the page and find understandings. They use an important skill called inferring. When students infer, they go beyond the text to find meaning. The information they understand is not found in the text, which requires them to imagine what a character is feeling or what the author means by words or actions. अब इंटरप्रेटिव लेवल में जो है कोई भी चीज़ जो है वो लिटरल लेवल तक नहीं रहता. सिर्फ इंफॉर्मेशन हम टू द पॉइंट नहीं देखते हैं कि जो पढ़ा वो समझ लिए बस. वो जो है वो इन्फर करता है. वो गो बियॉन्ड द टेक्स्ट के बियॉन्ड जाके समझने की कोशिश करता है कि क्या ऑथर क्या एक एक वर्ड का क्या मतलब है, एक एक एक्शन का क्या मतलब ऑथर बोल रहा है. स्किल्स यूज्ड इन इंटरप्रेटिव लेवल इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया. आप आइडेंटिफाई करोगे तो मेन आइडिया को. अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स पर्पस. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑथर का पर्पस क्या है ये लिखने के पीछे. डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेडिक्टिंग और समराइजिंग इवेंट्स. Another student, Mary, is working on interpretive skill in comprehension. She is reading the book The Outsiders with some other students. Their teacher asks questions to improve their understanding, such as why do you think Pony Boy ran away, and what point of view is the section taking. These and other questions help students read between the lines and develop a deeper understanding of the text. अब इसका क्या मतलब है, अगर हम दोनों को वो करके देखें, अलग अलग करके देखें कि लिटरल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उससे आपको एकदम फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे कि जिमी ने पढ़ा डॉग का बुक तो उसमें पूछा जाएगा कि डॉग का क्या कैरेक्टर था, डॉग का क्या नाम था, कैट का क्या नाम था. लेकिन वहीं पे अगर आप इंटरप्रेटिव लेवल पे आते हो तो आपको गो बियॉन्ड जाना पड़ेगा टेक्स्ट कि आपको वाई से क्वेश्चन आएगा कि वाई डॉग वॉज फीलिंग लाइक दिस, वाई द कैट वॉज नॉट हेल्पिंग. ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा. द थर्ड वन इज़ क्रिएटिव लेवल. व्हेन स्टूडेंट्स रीड एट द क्रिटिकल लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, they are moving further beyond the text and making judgments as they read. Students at this level make decisions such as whether the text or author is accurate, reliable, or discern if a statement is a fact or opinion. इस लेवल में जो है क्रिटिकल लेवल में जो लोग हैं वो मूव फर्दर हो रहे हैं, वो गो बियॉन्ड द टेक्स्ट हैं. दे आर मेकिंग जजमेंट्स ऑल्सो कि वेदर जो राइटर और या ऑथर बोल रहा है वो एक्यूरेट बोल रहा है, वो रिलायबल बोल रहा है, या तो वो फैक्ट बोल रहा है या उसका ओपिनियन है वो. इफ़ रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट क्लाइमेट चेंज, स्टूडेंट्स may take part in a discussion and use skills on the critical level. They will need to be able to determine if the facts given are true and accurate, or read information and decide if it is based on data or the opinion of the author. देखिए, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या कोई भी चीज़ स्टेटमेंट कहीं पे दिया, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो देयर यू वुड फाइंड दैट कि या तो वो फैक्ट बेस्ड बताएगा ऑथर, या ऑथर जो है अपना ओपिनियन शेयर करेगा क्लाइमेट चेंज पे. तो व्हेन यू वुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बोथ द थिंग्स कि वेदर इट इज़ फैक्ट बेस्ड और उसका जो है ओपिनियन है, सो ये देन यू वुड स्टार्ट डूइंग क्रिटिकल लेवल ऑफ रीडिंग. This requires high-level thinking skills such as the ability to analyze or evaluate. The last one is creative level. Finally, the creative level of comprehension requires students to use the highest level of skill. Creative level highest level of skill है. They will read, पहले वो read करेंगे, think सोचेंगे and then make decisions. वो decision लेंगे in relation to text. After determining the accuracy of the climate change article, students may then debate what step
टू टेक यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। वो आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ने के बाद पहले सोचेंगे, फिर वो डिसीजन लेंगे कि कैसे इस आर्टिकल को हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं कि शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस, हाउ कैन दिस बी एकम्प्लिश्ड। वो इस टाइप का डिसीजन लेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे कि स्टूडेंट यूज़ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक एंड थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू यूज़ एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन टू देयर लाइफ्स और द रियल वर्ल्ड। वो उसको आर्टिकल को पढ़ने के बाद दे विल जस्ट ट्राई टू अप्लाई द इंफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। क्रिएटिव लेवल जो होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो ग्रास्प करके उसको बस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेवल पे नहीं रहने देते हो, आप उसको अप्लाई करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी में और द वर्ल्ड में। तो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग। लिटरल लेवल, उसके बाद इंटरप्रेटिव लेवल, critical level and creative level. Thank you.